Bolengi. Assalamu alaikum to everyone. So just taking the previous topic of Uswa Hasna forward, I would just like to repeat that we have to first develop a balanced perspective of Uswa Hasana that um, it's and because we are we live in a culture whereby sabr may be misunderstood as silence, and because we have read a lot of ayat. Sorry Nasreen auntie, आपकी वो आवाज़ आ रही है, माइक आपका ऑन है, so thank you. So we have read a lot of ayat about how to control ourselves, develop self-restraint, and control our anger, control our emotions, take guard from Allah, and then we have to be patient with everyone. But it should not be misunderstood as being quiet and silent and just putting up with all the zulm that may be happening with you. So in that kind of situation, if anybody is doing, is behaving wrongly towards you, तो आपको किस तरह से डील करना है? डेफिनेटली सेल्फ रिस्ट्रेन, बट एक हमने आयत देखी कि सीधी बात कीजिए, तो सीधी बात करके क्लियर कीजिए, पीछे बात ना कीजिए, उस इंसान से बात कीजिए, not to kind of पीछे किसी के आप उनके अगेंस्ट बात ना करें, because that would be wrong, and gossip na kare. You just have to say it up front to the person concerned and clarify any misunderstandings. Don't assume. So when you have a transparent relationship with anyone whom you are dealing with, things are a lot easier. And Allah Ta'ala further says that I will, मैं आपके अमाल की इस्लाह कर दूंगा और सिचुएशन को आपके लिए इम्प्रूव कर दूंगा. So it's actually basic wisdom. So this is what we are learning from Quran also, that this is the way Allah also wants us to behave. Now sorry auntie, आपका mic भी on है auntie Rabia, so mic is on so that it just echoes the voice. Thank you. जी, so सबसे पहले तो I will just I wanted to end this previous topic with 61 की 2, 3 and 4. The discussion actually, not the topic. The topic will go on, just the previous discussion of what we learned about self-restraint and whatever we are going to be practicing. 61 की 2, 3 and 4 देखिए, Surah Al-Saf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. दोबारा पूछे कौन सी सूरह और आयत है? Auntie, Surah 61, ayat number 2, 3 and 4. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों तुम कहते हो वो जो तुम करते नहीं हो. So again, whatever our learning is, we have to be putting it into practice. And whenever we say something that this is what Allah has said, whenever we want to say to anyone, सबसे पहले आपने practice खुद करनी है, and that actually says a lot more than you actually saying it to anyone else. kabura maqtan indallahi, ये बहुत बड़ा है अल्लाह के नज़दीक, it's a very big thing. अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम वो कहो जो तुम खुद नहीं करते हो. So it's very grave, it's a serious matter in Allah's eyes that you don't do as you say. So आपने जो कहना है वो करना है पहले. इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना, बेशक अल्लाह पसंद करते हैं उन लोगों को, युकातिलूना फ़ी सबीलिही, जो फाइट करते हैं अल्लाह के रास्ते में, सफ़न, in a saf, in an array, एक कतार में, कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि जैसे वो एक फाउंडेशन है, मरसूस इज़ सीमेंटेड, सीसा पिलाई दीवार की तरह, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं.
कि एज अ स्ट्रॉन्ग फ्रंट. सो आप स्ट्रॉन्ग फ्रंट नहीं बन सकते जब तक आप वो ना करें जो आप कहते हैं. सो कहने से पहले आपका करना अमल बनता है. And here we have read the word yuqatiluna fi sabilihi, who fight in Allah's way. So qital is to be understood as fighting to overwhelm. It is not to kill, as is usually translated and understood. And then of course we get confused कि इतना peaceful religion हमारा है, Allah Ta'ala कैसे कह सकते हैं कि आप go and kill anyone. You're not required to kill anyone in a literal sense. When you are killing, it is actually overcoming your nafs or overcoming the arguments presented by the others. So you just fight to the level of overwhelming the other person with a response. It is not meant to kill anyone. ठीक है जी? So fighting, it's qital is only fighting, and it is prescribed upon us, as we are going to learn in Surah 2, Ayat 216. जब हम फाइटिंग के साथ इस किस्म का इमोशन लगा लेते हैं ऑफ a lot of negativity and hatred and animosity, that is when everything becomes very confusing for us in Quran also and in our following of religion as well. जब इतना आपको पीसफुल तरीके से सारा तरीका समझाया गया है, तो ये क़िताल भी जो है इज़ सपोज टू बी डन इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव and in a manner that you have full control over yourself. It is not an emotional fight. So kindly bear in mind that हर चीज़ जब अल्लाह ने गार्ड लेने को कहा है, तो सबसे पहले रिस्ट्रेन का मकसद है अपने इमोशंस को रिस्ट्रेन करना. So 216 कुतिबा अलैकुमुल किताल, लिख दिया गया है तुम्हारे ऊपर किताल को. किताल इज अगेन ओनली फाइटिंग, कत्ल करना एज इन उर्दू, दैट्स नॉट इट. सो फाइटिंग इज प्रिस्क्राइब्ड अपॉन यू. वहुवा कुरहुल लकुम, और तुम हो कि इसे नापसंद करते हो. वी ऑल डू डिसलाइक फाइटिंग. हम सब नापसंद करते हैं बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट थिंग्स टू बी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड इन पीस. ये अल्लाह ताला भी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम नापसंद करते हो फाइटिंग को. व असा अन तकरहू शैअन, और शायद कि तुम नापसंद करो किसी चीज़ को. वहुवा खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो. सो अगेन अल्लाह ताला इज़ रीअश्योरिंग अस दैट फाइटिंग इज़ गुड फॉर अस. व असा अन तुहिब्बु शैअन, और शायद कि तुम पसंद करो किसी चीज़ को. वहुवा शर्रुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बुरी हो. So this is very important to understand कि we may desire peace at all times, कोई कुछ fighting ना हो, कुछ ना हो, लेकिन fighting is part of life and it is a way of moving forward. It is a way of discovering. Even आपके mind में जो disequilibrium होता है when you are fighting internally with your own thoughts, that is very positive. So usme, yes, there is disturbance in that, yes, there is restlessness in that, and you don't like it, and there is some anxiety, but that is a way of learning. तो आप कोशिश ही तभी करते हैं जब आपके अंदर कोई डिसबैलेंस होता है, तो उसको आपने नेगेटिवली नहीं देखना है. आप उसको, हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी देखिए फ्रॉम अल्लाह टू ग्रो. वल्लाहु यालमु, और अल्लाह को इल्म है. व अंतुम ला तालमून, और तुम्हें इसका इल्म नहीं है. एब्सोल्युटली. सो वी डोंट नो हाउ इट बेनिफिट्स अस, बट ऑफ कोर्स अल्लाह नोज. सो अल्लाह हैज़ रिटन अपॉन अस टू फाइट. अब इसके साथ ही आप देखिए 2 की 190, बिकॉज दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हेन वी लर्न अबाउट फाइटिंग. सूरह 2 आयत 190. वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और तुम फाइट करो अल्लाह के रास्ते में. अल्लज़ी युक़ातिलूनकुम,
उनसे जो फाइट करते हैं तुमसे, वला तातदू, और नहीं तुम एक्सीड करना, सो डू नॉट ट्रांसग्रेस लिमिट्स, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करते ट्रांसग्रेस करने वालों को. So again, not exceeding limit means you fight, but you fight within limits. And fighting within limits, we are going to learn about it. So आपने खामोशी से सब्र करके, खामोशी जो है ना is not synonymous with sabr. So we have to understand कि आपको जब फाइट करना पड़ता है तो आपने एक्शन भी लेना है और आपने बात भी करनी है. अब किस तरह करनी है वो हमें आगे सीखना है. Not to transgress, do not become aggressive, do not get emotional. So पूरा जो पिछला बैकग्राउंड था ऑफ तकवा, वो आपका तकवा should remain there, and what you're required to do is have talk to people. So you communicate in a non-aggressive, non-emotional way, but you do put your point across, and at the same time अपने ऊपर भी आपने ज़्यादती नहीं करनी है. 2 की 256 देख लीजिए in this regards. ज़्यादती नहीं करनी है अपने ऊपर भी और ना होने देनी है. जहाँ भी कोई कर रहा है वहाँ पे आपको कोई फाइटिंग स्टांस लेना है. 2 की 256, ला इकराहा फिद्दीन, नहीं है कंपल्शन दीन में, जजमेंट में. कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, बयान हो जाता है रुश्द विच इज़ विजडम, सेंसिबिलिटी, फ्रॉम व्हाट इज़ रॉन्ग. So you can clearly see what is wisdom from what is the wrong or in error. So basically आपने फोर्स नहीं करना है किसी को भी. आप फाइटिंग भी कर रहे हैं, अपने नफ्स में भी कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, आपने फोर्सिंग नहीं करनी है. You always know when you are forcing things or when you should stop. So उसका चेक आप तभी रखते हैं, and you keep that in mind when you have already developed some self-control. फमई यकफुर बित्तागूत, और जो रिजेक्ट करता है ईवल को, तागूत को, नेगेटिविटी को, वयुमिन बिल्लाह, और ईमान लाता है अल्लाह पर, फ़क़दिस तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, तो फिर उसने थाम लिया है एक ऐसी स्ट्रॉन्ग होल्ड को, लन फिसाम अलहा, जो कभी नहीं टूटता. सो ऐसे कॉवेनेंट को पकड़ लिया है. उसका इज़ लाइक अ कॉवेनेंट, ऐसी बाइंडिंग आपके साथ एक आ जाती है स्ट्रॉन्ग होल्ड की, जो कभी नहीं टूटता. वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाले और इल्म रखने वाले हैं. ठीक है जी. अब ये सब चीज़ें हमने फाइटिंग के रेफरेंस में देखी हैं. अब आप आगे देखिए कि हमने किस तरह से I will take you back to an incident because हमने पढ़ी थी आयत, when you have to be humble towards a person who's transgressing all limits, which is Pharaoh personality. So Pharaoh transgresses all boundaries, but अल्लाह ने हज़रत मूसा को ये नहीं कहा कि आप खामोश रहिए और रहने दीजिए उनको. अल्लाह ने उनसे कहा कि आप जाइए, हज़रत मूसा और हज़रत हारून जाइए और उनको अल्लाह का मैसेज दीजिए. So the duty or responsibility is to lay the facts right. You don't stay quiet, you don't stay away, you have to go and fight. So that is the fighting incident that we are going to look at. But we read that you have to be humble. ठीक है जी. So 20 की 44 देखिए. So this is an event. ये हदीस जब हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें फ़ाइट करना है in Allah's way. So I'll start with 20 की 44. I'm just going to pick up ayat so we focus on the aspect which is directly linked towards our topic. 20 की 44. फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, और फिर बात करो उनसे नरमी की बात. इन अ हम्बल वे, आप माइल्ड तरीके से बात कीजिए. नाउ दिस इज़ व्हेन यू आर एड्रेसिंग टू एन अग्रेसिव, ट्रांसग्रेसिंग, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी.
लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, कि शायद वो ज़िक्र पकड़ ले, अल्लाह की उसको एहसास हो जाए, या वो अल्लाह से डर जाए. सो ये आपने अपॉर्चुनिटी देनी है by talking humbly and softly with them. But Hazrat Musa and Harun say, काला रब्बाना, वो कहते हैं ए हमारे रब, इन्नना नखाफु, बेशक हमें खौफ है, अन यफ्रुता अलैना, कि वो हमारे साथ जल्दबाजी करेगा अपनी अग्रेशन में, औ अन यदगा, या वो एक्सीड करेगा, अगेन ट्रांसग्रेस करेगा इन responding to us. Obviously, you expect a reaction from a person when you go and talk to them. So Hazrat Musa and Hazrat Harun are saying कि हमें खौफ है इनका. So that's how we feel. That's very natural. काला, अल्लाह ताला कहते हैं, ला तखाफा, नहीं तुम खौफ खाओ उनसे, इन्ननी माआकुमा, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अस्माऊ व अरा, और मैं सुनता हूँ और देखता हूँ हर चीज़ को. So Allah Ta'ala gives us reassurance that when you're on the right path, Allah is with us. We should not be afraid of saying what is right. ठीक है जी. So यहाँ तक आप पहले समझ लीजिए कि अल्लाह ताला is always watching and listening to us. Then when they go and deliver the message to Pharaoh, so अल्लाह ताला says 20 की 47 में, फ़अतियाहु, फिर जाओ तुम दोनों, फ़कूला इन्ना रसूला रब्बिका, और कहो बेशक हम मैसेंजर हैं आपके रब के, फ़अरसिल माआना बनी इसराइल, और फिर भेज दें हमारे साथ बनी इसराइल को, वला तुअज़्ज़िबहुम, और नहीं आप उन्हें पनिश करें. So whatever transgression that the person is indulging in, so you say it straight कि this is, not to be done. कद जि'नाका बिआयतिन मिर रब्बिक, और बेशक हमारे पास हैं आयतें, साइंस आपके रब की तरफ से, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, और पीस है उन सब के लिए जो फॉलो करते हैं गाइडेंस को. सो ये मैसेज उन्होंने देना है. मैसेज इज ऑफ कोर्स हर सिचुएशन में इज रेलेवेंट टू व्हाट इज रिक्वायर्ड. इन्ना कद ऊहिया इलैना, बेशक हमें वही हुई है हमारी तरफ, अन्नल अज़ाबा अला मन कज़्ज़बा व तवल्ला, कि बेशक पनिशमेंट है उन पर जो झुटलाते हैं, एंड दोज़ हू टर्न अवे. नाउ दिस इज़ अ मैसेज. सो उसके बाद रिस्पॉन्स क्या होता है फ़ेरो का, विच इज़ एक्सपेक्टेड. काला फमन रब्बुकुमा या मूसा, सो फ़िरौन कहता है फिर कौन है तुम्हारा रब ए मूसा. सो सबसे पहली बात, वन हैज़ टू अंडरस्टैंड somebody who thinks that they are the Rab. Pharaoh is a personality that thinks that they are in control and authority, and they are the ones sustaining everything around them. So उनकी वजह से जो कुछ हो रहा है, जो सिस्टम बना हुआ है, वो सारा उनकी वजह से बना हुआ है. So they are in that's why they have transgressed, because they think that they are all empowering, all in power. So and then they question कि फिर ये कौन है, who is your Rabb? So Hazrat Musa says, काला रब्बुना लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु, हमारे रब वो हैं जिन्होंने अता की हर चीज़ को, उसको क्रिएट किया, सुम्मा हदा, और फिर उसे गाइड किया. So important thing to understand is that Hazrat Musa is coming up with facts, with real, with आयतें. So situationally अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है टू फॉलो, कि आप से जब सवाल किया जाएगा from that authority whom you're trying to take some message to, so that they stop behaving the way they are doing, so you don't be afraid. सबसे पहली बात ये, और आप स्टेट कीजिए, आप तैयारी करके जाइए, और वो बातों के जवाब, काउंटर आर्ग्यूमेंट आपके पास होना चाहिए. So you don't just go and just confront anyone. You go with preparation. We'll read another ayat in this regards. And of course, Pharaoh will not agree. Kala fama balul kurunil ula. फिर क्या है
matter, what is the condition of those जो पहले गुजर गए. मतलब ये कि क्या अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी, क्या उनको क्रिएट करके कुछ नहीं भेजा, तो बाकी लोगों ने जो कुछ किया, व्हाट अबाउट देम, व्हाट इज़ देयर केस. सो बिकॉज ही डजंट बिलीव कि उसके अलावा कोई और भी इस तरह की सिस्टम चला सकता है. सो यूजुअली पर्सनालिटीज़ who are in power and in authority, they think कि वो सारा निज़ाम वही चला रहे, कोई और नहीं चला रहा. ताला इल्मुहा इंदा रब्बी. सो हज़रत मूसा सेज कि उसकी नॉलेज मेरे रब के नज़दीक है. फ़ी किताबें लिखी हुई, ड्यूली रिकॉर्डेड. ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, और ना ही मेरा रब भटका हुआ है, मीनिंग ही डजंट डू रॉन्ग. वला यंसा, और ना ही वो भूला हुआ है. सो अल्लाह ताला ना भूलते हैं और ना ही कोई गलती करते हैं. So आगे there is a continuity of this. So the point to understand is that you stay firm on your stance. आप अपने arguments prepare करके जाइए जब भी आपने fight करना है, और objectively, unemotionally present your point of view to the best of your ability. इसके साथ आप देखिए and after this, the whole incident is when magicians are told to, I won't read all of this, I'm just going to present it quickly so that everybody has read it already. कि जब जादूगरों से कहा जाता है कि ओके इनके साथ मुकाबला किया जाएगा, and Hazrat Musa then responds to them as well. So उसकी दो आयतें हम देख लेते हैं. But the idea is कि उनका तो delusion है, उनकी deception है. That is why it is actually जादू, because it is a perceived reason which is presented by Pharaoh to everyone so that they believe in it. हालांकि reality is something else, and haq is then presented by Hazrat Musa. So आप आयतें देखिए, same surah 20 and ayat 68. तो जब वो अपना अटैक करते हैं the magicians, और जो सहर करने वाले लोग जो आपके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तारी कर देते हैं. सो सहर इस सेंस में है कि वो आपको सही चीज़ नज़र नहीं आती, और आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपकी अकल के ऊपर एक जादू सा आ जाता है कि आप यू स्टार्ट बिलीविंग इन वट एवर दे आर सेइंग. सो दे मेक यू बिलीव इन थिंग्स विच आर एक्चुअली नॉट ट्रू, and that is what delusion is. So reading 68, कुलना ला तखफ. अल्लाह कहते हैं हज़रत मूसा को, नहीं तुम खौफ खाओ. इन्ना का अंतल आला, बेशक तुम रहोगे आला, यू विल हैव एन अपर हैंड. व अलके माफ़ी यमीने का, और डाल दो जो तुम्हारे राइट हैंड में है. सो राइट हैंड का मतलब है whatever the right thing is in your hand, whatever you have got a grasp on in the right manner. So अल्लाह की तरफ से जो भी आप समझ रहे हैं कि you're on the right track, उस लॉजिक को आप प्रेजेंट कीजिए, regardless of whatever how fancy their logic seems to be. तलकफ मा सनाउ, तो वो खा जाएगा उसको जो इन्होंने मैन्युफैक्चर किया हुआ है. So, जब आप अल्लाह की तरफ से दी गई अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट करते हैं, या अल्लाह की दी गई आयत की समझ को प्रेजेंट करते हैं, this overcomes all the rest of the logic and reasoning that is presented by people who are trying to take you off track and trying to use you for their own purpose. इन्नमा सनाउ कैदु साहिर, बेशक इनकी जो सनतकारी है, whatever they have cooked up is actually ये चाल है to create delusion, to create a cover on the minds, and keeping them away from thinking well. वला युफ्लिहु साहिरु हैसु आता, और नहीं फलाह पाता सहर करने वाला या जादू करने वाला जहाँ भी वो जाता है. ठीक है जी. सो फ्रॉम दिस whole incident, from this hadith,
the takeaway is that first of all, you have to believe that Allah is with you. You go and you don't stay at home and say nothing about things that are going wrong. Whenever you are ready with your points, with your logic, with your understanding, and a time comes when you are able to present. मूसा के साथ हारून इसलिए जाते हैं because Harun has fluency of speech. He can present the arguments well. So when you are ready to understand and present the arguments well, you should go and talk to the person and explain the right way which should be conducted and followed. So you may be afraid, but then Allah is with us and you stay firm and stay strong. And this is it. It's not an emotional action, not an aggressive action. It is a very straightforward. And we see this, आप अगर मारूफ तरीका भी देखिए तो दुनिया में आपको अगर कोई चीज़ अपना point, you have to put your point across, this is the way you go. You have to do it. You don't stay back, otherwise you keep suffering and you let everybody else also suffer. So ये आपने तरीका देख लिया है और उसके आगे है of course that whether they will agree or not is regardless. आपकी judgment इस पे base नहीं होनी चाहिए, आपकी effort इस पे base होनी चाहिए how to put the point across in the best way possible. And it shouldn't be because Pharaoh did not believe. He did not give in. So that doesn't matter. आपके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये यहाँ तक है कि आपने पॉइंट आगे पहुँचा दिया, क्योंकि फिर उसके बाद फ़िरौन जब नहीं मानता तो अल्लाह ताला गाइड्स हज़रत मूसा फर्दर टू मूव अवे फ्रॉम हिम. लेकिन वहाँ तक की उन्होंने मैसेज पहुँचाने तक की एफ़र्ट उन्होंने पूरी की, वो काम हो गया. So उसके बाद आप उससे हट जाते हैं and you let it be, you let the matter, leave it to him, that's fine. But your duty towards Allah is to get the message across. ठीक है जी? So I hope it clears a lot of things. I'm going to read another ayat, 8 ki 60 and 61, which will further support whatever the discussion has been. Surah 8, Anfal, ayat number 60. वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन, और तैयार करो रखो तुम जो तुम्हारी इस्तिताअत हो, जितनी योर स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी है, मिन कुव्वतिन, इन योर स्ट्रेंथ. सो मेक yourself ready in strength to your utmost capacity. वमिर रिबातिल खैले, और रब्त रखो अपने घोड़ों में, meaning hold your horses. While you're in the phase of preparation, stay controlled. Hold your horses, don't give in, right away, don't react. Turhibuna bihi. So you will be actually casting fear in your opponents. So when you see, आप देखते हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन भी है, वही अल्लाह ताला इसको कंफर्म कर रहे हैं कि जब अगला बंदा कंट्रोल में होता है in any sort of fight or confrontation, the person who is in control actually has won half the battle. So that is extremely important that you hold your horses, but you are well prepared for everything. अदू वल्लाहि व अदूवाकुम, जो अल्लाह का दुश्मन है या अपोनेंट जो अपोज कर रहा है और जो तुम्हारा दुश्मन है, व आखरीना मिन दूनिहिम, एंड अदर्स ऑल्सो, इनके अलावा, इन दुश्मनों के अलावा. यू सी व्हेन यू आर in Allah's way, when you are overcoming a few, you're actually overcoming a whole psyche. So आप उसको as a few चीज़ें मत देखिए, few number of people मत देखिए, वो पूरी it actually leads to a whole set of a whole psyche which you will be able to overcome. ला तालमूनहुम, नहीं है तुम्हें इल्म उनके बारे में, अल्लाहु यालमुहुम, अल्लाह को इल्म है उनके बारे में. Only Allah knows. We don't even see all those who are against us.
वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो भी तुम खर्च करोगे किसी चीज़ में से, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, युवफ़ा इलैकुम, तो उसको वफ़ा किया जाएगा, पूरा किया जाएगा तुम्हारी तरफ, व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन जनाहू लिस्सल्मे, और अगर वो इंक्लाइन हो जाएं सलामती की तरफ, टूवर्ड्स पीस, द अपोनेंट, if he inclines towards submission and peace, fajna laha, then you also incline. So there's always should be room for, you know, allowance for submission, and anybody who humbles or inclines towards peace, आपने भी उसको अलाउ करना है। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि अब शुरू हुई है फ़ाइट तो पूरा करके ही जाए, नो मैटर हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर, एंड इवन दो यू फील दैट यू विल टेक इट, you know, easily take over. वतवक्कल अलल्लाह, and trust in Allah. Allah पे trust कीजिए, give them that allowance and benefit of doubt. इन्नहु हुवा समीउल अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाले और इल्म रखने वाले हैं। और अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं, नेक्स्ट आयत भी देख लीजिए, वेरी रेलेवेंट, व ई युरीदु अन यख्ताऊका, और अगर उनका इरादा है कि तुम्हें धोखा देंगे, ठीक है, फ़इन्ना हस्बकल्लाह, तो बेशक अल्लाह काफ़ी हैं आपके लिए। सो यू वुड नो कि अगर बाद में अगर उनका इरादा धोखे का भी था तो डजेंट मैटर, आपके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हुवल्लाज़ी, वही है ज़ात अल्लाह की, अय्यदका बिनस्रिही, जो स्ट्रेंथन करता है आपको अपनी हेल्प से, व बिल मोमिनीन, और मोमिनीन के साथ आपको स्ट्रेंथन करता है। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला इज़ ऑलवेज विद अस, सपोर्टिंग अस थ्रू द बिलीवर्स ऑल्सो एंड थ्रू द स्ट्रेंथ इन आवर हार्ट्स। 65 देखिए, 8 की 65, या अय्युहन नबीयो, ए नबी, हर्रिज़िल मुमिनीना, आप अराउज़ करें मोमिनीन को, इंस्टिगेट कीजिए मोमिनीन के अंदर, अलल किताल, टूवर्ड्स फाइटिंग। सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर आयत कि आपको फ़ाइट करना है, you have to rise up to fight and rise up to the challenge, face it, and then prepare for it in the way that we have read already. ई यकुम मिनकुम इशरूना, अगर हैं तुम में से 20, साबिरूना, सब्र करने वाले लोग, सेल्फ रिस्ट्रेन वाले लोग, यगलिबू मिअतैन, तो वो गलबा पाएंगे 200 पर, व ई यकुम मिनकुम मिअतैन, और अगर हैं तुम में से कोई 200, यगलिबू अल्फम मिनल लजीना कफरू, तो वो गालिब होंगे 1000 के उन लोगों पर जो कुफ्र करते हैं। सो दिस इज़, यू नो, द काइंड ऑफ वेटेज कि आप 200 भी होंगे नंबर में तो आप 1000 के ऊपर गलबा पा सकते हैं, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ रिस्ट्रेन एंड बिकॉज ऑफ द वे यू बिलीव इन अल्लाह। बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, क्योंकि ये वो लोग हैं जो समझ नहीं रखते। सो समझदार लोग चाहे नंबर में कम होंगे, they will be able to overcome people who are larger in number, 5 times in number, but, or 10 times in number, but at the same time they are the ones who don't know, they don't have the sensibility, they don't have understanding, and they don't have Allah's support। सबसे बड़ी बात, ठीक है जी। तो अब all this and one more ayat I want to see, 2 की 250 देखिए, Surah 2 ayat 250। This is also a whole incident about fighting, but I want to just bring the attention towards the dua। तालूत और जालूत की जो फाइट है, तालूत is a personality, positive personality in us which has the stretch, जिनके पास तूल है, that's why the word talut comes from। Stretch means the breadth or and the diversity of the skill set and the knowledge and command that the
Basically, you can understand from the flyer's perspective the wider span of wing. That is Talut personality, which has followed in Allah's way and is in the positive way, in the path of positivity. And Jalut is the negative forces. So we read about them, Surah 2 ki ayat 250, वलम्मा बरजू लिजालूता व जुनूदिही, और जब इमर्ज हुए, जब एडवांस किया, आगे बढ़े जालूत और उसकी फोर्सेस, कालू एंड द पीपल जो अल्लाह के बिलीवर्स हैं वो ये दुआ मांगते हैं. सो ये हमारी दुआ है इन फाइटिंग. रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ए हमारे रब हमें फ़रोग़ दे दीजिए हम पर सब्र का, मीनिंग इंक्रीज अस इन आवर पेशेंस. So patience is again waiting with hope. Patience does not mean कि आप चुप करके wait कर रहे हैं. Patience simply means that you're waiting for the right time with hope. वसब्बित अक़दामना, और firm कर दें हमारे कदम. So firmness of stance is very important when you are up in a fight. वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी हेल्प कर दीजिए. एंड ऑफ कोर्स वी कांट डू एनीथिंग विदाउट अल्लाह's help against those people who reject. So firmness of stance is important because self-doubt also comes in. You keep going left and right and wondering whether you are on the right or not. So हमें अल्लाह से firmness चाहिए in our resolve, in our stance, and हमें अल्लाह से help चाहिए है against those who reject whatever we believe in. ठीक है जी. 16 की 125 देखिए. It further tells us how we are supposed to fight. की 125. उद्दू इला सबीले रब्बिका, इनवाइट करें अल्लाह के रास्ते की तरफ, अपने रब के रास्ते की तरफ, बिल हिकमत, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसनात, और इंस्ट्रक्ट करें, वाज करें एहसन तरीके से, इन अ ब्यूटिफुल मैनर, इन अ वाइज ब्यूटिफुल मैनर. वजादिलहुम, जादिल is the jadal is argument, any debate. So when you're going back and forth in discussion whereby the other person has an opposing point of view and you are trying to give your point of view which is not in sync with whatever they are saying, so it's actually opposing views. वजादिलहुम बिल्लती हिया आसन, तो आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट कीजिए अच्छाई के साथ, ऐसन तरीके से. You're going to have a debate with the person with opposing views. इन्ना रब्बा का हुआ आलमु, बेशक आपके रब को इल्म है, बिमन दल्ला अन सबीले, कौन भटका हुआ है रास्ते से, वहुआ आलमु बिल मुहतदीन, और अल्लाह को इल्म है उन लोगों का जो गाइडेंस पर है. ठीक है. आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि as a person who is reading Quran, who is trying to follow Quran to the best of their capacity, कि wisdom के साथ और अच्छी instruction के साथ, in a beautiful manner और अच्छे तरीके से आप arguments कीजिए लोगों के साथ. ठीक है जी. And you're not going to get emotional, no need to get personal, and no need to get aggressive about anything. आगे भी आयत देख लीजिए. व इन आकबतुम फ़आक़िबू, और अगर वो if they catch you, then you also catch them out बिमिस्ल मा उक़िबतुम बिही, to the extent to what they have, in the manner that they caught you out. So उतना ही उनके साथ बैलेंस में रखिए. वला इन सबरतुम, और अगर तुम सब्र कर लोगे, if you show more restraint, लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन, then that is better for those who show patience. So अगर आप patience रखेंगे, if you are going to wait, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप patience के साथ डील कीजिए उन लोगों को
बट अल्लाह ने कहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ किया, आगे बढ़ के कोई ट्राइंग टू आकबतुम इज मेकिंग एन एंड. So if they're trying to do that, you can do that similarly, but only to that extent. Just make an end of it only to that extent. But if you are patient with them, then Allah Ta'ala, that is the best way possible. ठीक है जी. Now, I think that should end the discussion. Last thing is Surah Kafirun, which is very, very important in this regards. Surah 109. Because in a nutshell, it describes how, our attitude should be. Finally, ये सारी बातें हो गई हैं, आपने सब कुछ कर लिया है, तो उसके बाद अब क्या करना है. आपको क्लियर हो गया है कि दिस पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट, रिजेक्टिंग योर पॉइंट एंड विल नॉट लिसन. आपकी सारी कोशिश हो गई है इन गेटिंग द मैसेज अक्रॉस. सो आपका काम ख़त्म हो जाता है, बिकॉज इन द फॉलोइंग ऑफ मैसेंजर रसूल अल्लाह की फॉलोइंग में आपका काम सिर्फ मैसेज पहुंचा देना है. आपका काम नहीं है टू मेक देम वर्क ऑन इट और मेक देम अंडरस्टैंड इट. Yes, you try your best level so that the message is put across in a way that it actually hits home and take away something from it to the best of your ability. बट उसके बाद आपके ऊपर ये जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं रखी है कि दे मस्ट फॉलो एंड दे मस्ट बी व्हाटएवर, जो कुछ भी वो करेंगे आपके उसके ऊपर नहीं है. बिकॉज हमने आयतें पीछे पढ़ी है कि इट्स ओनली अपॉन यू टू गेट द मैसेज अक्रॉस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरह काफिरून, सूरह 109. कुल या अय्युहल काफिरून, कहिए ए लोगो जो कुफर करते हो, मीनिंग दोज हु रिजेक्ट. सो रिजेक्टर इज़ एनी वन हु इज़ नॉट अग्रीइंग टू यू. इसको अगेन आप विदाउट इमोशंस, विदाउट एनी नेगेटिविटी, ठीक है, इट्स अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपको इसके बारे में एक अग्रेसिव इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अल्लाह ने हर एक को अलाउंस दी है टू हैव देयर ओन ओपिनियन. ठीक है, लेकिन जब आप मैसेज दे रहे हैं या कोई सही बात अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बता रहे हैं किसी को, एंड इन एनी मैटर दे आर डिफरिंग, दे आर अपोजिंग रादर, then you just say, oh, those who reject this message, la abudu ma ta'budu, I will not serve what you are serving. Because obviously you have a difference or opposing point of view when you are following different or serving different things. तो मैं नहीं सर्व करूँगा उसको जो तुम सर्व करोगे. वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, and neither will you serve that which I serve. So जिसको मैं सर्व कर रहा हूँ अल्लाह को, वो तो आप नहीं सर्व कर रहे. वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना ही मैं सर्व करूँगा उसको जिसको आप सर्व कर रहे हैं, जिसकी बंदगी आप कर रहे हैं. So it's clear between us कि I will not serve what you serve and you will not serve what I serve. वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, nor will you serve that which I serve. So when that is clear, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जजमेंट और मेरे लिए मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, and that is how we end. And there is no need for any further fight or any further discussion or argument, and you just end it like that. कि आप accept कर लेते हैं, we agree to disagree, that's fine, it's okay. In that particular matter, wherever we have a disagreement, so उसके बारे में आप उसको छोड़ दीजिए, उसको आप इशू ना बनाइए. बिकॉज आपके इस तरह से आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, लव्ड वंस में, हर एक relationship के अंदर you will not have people who will always have the same opinion as yours, but that is not your problem. आपको उसको bone of contention नहीं बनाना चाहिए.
उस मामले को जब आपने सारी डिस्कशन हो गई, अच्छे तरीके से समझा लिया, आपने मैसेज अक्रॉस कर दिया और अब वो आपको लगता है कि इनफ हैज़ बीन डन अबाउट इट, the person is not going to agree and you will not understand their point of view and follow that, then you let it be. Just leave it to that. So आपके ऊपर, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि हम किसी इंसान के साथ एक मामले में डिफ़र करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो हम उसको बिल्कुल ही बना देते हैं अपना, वी स्टार्ट ट्रीटिंग दैट पर्सन एज आवर एनिमी. नॉट रिक्वायर्ड. आपको सिर्फ उस मामले को इन आइसोलेशन लेकर चलना है. Just take that issue in isolation with the rest of the person. Wherever you have disagreement, you let it be. To you follow what you follow and I follow what I follow. We disagree. We agree to disagree in this. That's it. क्योंकि हमने पीछे आयत 6 की 106 है, आई थिंक कि एराज़ करें मुशरिकीन से, तो आप हट जाइए उन लोगों से जो कि आपके जो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं. इन दैट मैटर ओनली, वहाँ पे आप मत डिस्कशन कीजिए, आप मत उनके साथ मिलिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे इंसान को छोड़ दीजिए. There are areas, there are relationships when you can enjoy time with them, जो आपके साथ अलाइन होती है चीज़, आप ज़रूर उसके साथ उनके साथ मिलें भी और उनके साथ, बिकॉज अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड all these aspects are part of a person, not all of that person. Similarly, हमारे अंदर भी मुशरिक है, हमारे अंदर भी काफिर है, हमारे अंदर भी मोमिन है. सो जहाँ जहाँ हमारा मोमिन दूसरे मोमिन के साथ मैच करता है, वहाँ वहाँ हम उनके साथ मिलेंगे. जहाँ जहाँ हमारा मोमिन किसी के साथ, वो हम भी किसी के लिए काफिर हो सकते हैं, who has a better understanding of ईमान in a certain aspect. They may feel that we are rejecting something because our understanding is incomplete. Why not? So they will also, so we refrain in that. So उसमें हम कंट्रोल करेंगे. लेकिन इसमें आप ना रिश्ते तोड़िए, ना लोगों से दूर हो जाइए. जहाँ जहाँ जितना जितना ताल्लुक़ आप अच्छे तरीके से अपनी पीस ऑफ माइंड के साथ, खुलूस दिल के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट. It is not required of us to completely shun anybody out of our lives unless that is needed for your peace of mind, and because there is no way that you can keep, sometimes once a month वाला interaction भी ठीक रहता है, sometimes साल में एक दफ़ा भी ठीक रहता है, and sometimes अगर आपको daily भी रखना पड़ता है तो आप उस topic की तरफ जाइए ही ना जो कि issue बन सकता है. So there are ways of handling things. आपके घर में भी लोग होते हैं, आपके फैमिली में लोग होते हैं जो कि आपसे अग्री नहीं करते हर बात पे, आप उनको छोड़ तो नहीं देते. सो इस एटीट्यूड के साथ आपको लेके अपने सब रिलेशंस को साथ लेके चलना है. क्या पता किसी वक्त उनको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, द मे टर्न, नहीं भी आती तो इट्स नॉट अपॉन यू. ठीक है जी. So I think that this would end our discussion on a lot of things that we have discussed in the past also for the past 2 lectures. So this does give in my opinion, I think I've tried my best to give a balanced perspective to this. अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, then we can end the session today. थैंक यू सो मच. पूछना था. बहुत ही अच्छा समझाया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा समझाया. थैंक यू सो मच. Thank you, Auntie. Alhamdulillah. Sorry, let me just stop the recording. I'm not able to stop. Yeah. Sorry. I don't know why it's not pressing. Okay. चलें, ठीक है, it's all right. I think when the meeting ends. जी बताइए. आमना, मुझे कत्ल का पूछना था. तो कत्ल इज बेसिकली आपके जो नेगेटिव साइकीज हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपकी पर्सनालिटी के हैं, आप उस पर काम करते हैं एंड उनका कत्ल करना है, आपने उनको ख़त्म करना है. Absolutely. अपने जो आपका नेगेटिव नफ्स की जो नेगेटिव साइकीज हैं, देखिए, ओवरकम करना है, मे बी ओवरकम करना है. जी बिल्कुल. किताल का मतलब इन कुरान इज़ टू फाइट. ठीक है जी. बिकॉज जब अल्लाह से युकातिलूना फी सबीलिल्लाह है तो आप फाइट करो तुम अल्लाह के रास्ते में, बट डोंट बी अग्रेसिव. तो अगर आपने कत्ल कर दिया इन द लिटरल सेंस, यू किल्ड समथिंग,
then obviously what room is left to not exceed further? So we have to understand. और दूसरी आयत 2 की 84 में अल्लाह ताला says that bloodshed तो है ही नहीं, तो जब bloodshed नहीं है तो किताल तो killing नहीं हो सकती है, ठीक है जी. It is only fighting, and because when Allah Ta'ala says fighting is prescribed upon you, it is the same word used. So in some areas it is being translated as killing. तो we can't say killing is prescribed upon you, not at all. तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, कुरान में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. सो ये हमारी ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, हमारी परसेप्शन में कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि करेक्शन रिक्वायर्स करेक्शन. Certainly we have to fight in Allah's way. Certainly fighting is prescribed upon us, because fighting helps us actually move forward. Fighting simply means कि आप अपने अंदर एक opposing point of view के साथ आपकी जब भी ग्रोथ होती है, आपको अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं, और आप फिर सही जजमेंट बनाने के लिए आपको कुछ एरियाज़ के ऊपर ओवरकम करना पड़ता है. यू हैव टू ओवरकम some weaknesses of yours. That is how you become stronger in your character also, and in your iman as well, consequently. So जब आप कहते हैं कि फाइट करेंगे, जी, जिस तरह आपने पॉइंट किया कि हमने अपने अंदर अपनी नफ्स के साथ फाइट करना है, प्लीज़ बी अवेयर दैट यू कांट किल एनी पार्ट ऑफ योर नफ्स, नाइदर आर यू रिक्वायर्ड टू. आपके अंदर जो भी कोई नेगेटिविटी है, वो हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी है, आपने उसको ओवरकम करके अंडर कंट्रोल रखना है. फॉर इंस्टेंस, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, आप जेलस बहुत ईजीली हो जाते हैं, लेट्स से, जस्ट टू टेक एन ईजी एग्जांपल, तो वो पहले आप रियलाइज़ करते हैं और फिर आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे. आपके अंदर से जेलसी या इस किस्म की हेट्रेड या कोई ईगो ख़त्म नहीं हो जाएगी. दे आर ऑल पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन. दे विल स्टे विद इन अस. एंड इमोशंस को आपने किल नहीं कर देना इन द सेंस कि आप मरी जाएं बिल्कुल अंदर से. नॉट एट ऑल. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच नीडेड फॉर आवर पर्सनैलिटी टू बी बैलेंस्ड. इन सब को सिर्फ आपने अंडर कंट्रोल रखते हुए अपनी सोच को डेवलप करना है और अपने बिहेवियर को डेवलप करना है, ताकि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो. आप ख़त्म कुछ नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं है, तो डोंट इवन स्ट्राइव फॉर इट. एंड टाइम एंड अगेन यू विल बी फेसिंग areas, or you will be facing situations where you will feel that emotion again, which is okay. It's very normal to have emotions. तो ये प्लीज़ अपने आप को रोबोट मत बनाइए और ना एक्सपेक्ट कीजिए कि आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप ऑल गुड बन जाएंगे. ऑल गुड एंजल्स भी हैं, लेकिन उनमें फिर शैतान छुपा हुआ था, इब्लीस. ठीक है जी. तो ऑल गुड इज़ नॉट द वे टू स्ट्राइव फॉर. अंडर कंट्रोल balanced human being आपको रहना है. And if we can, I will read a few ayat next time inshallah, क्योंकि अभी टाइम ख़त्म हो गया है, about तकवा का लिबास, because तकवा is a libas that you wear when you are dealing with people. Your self-restraint is a whole garb, a way of conducting yourself. But at the same time, Allah has given us times when you have to be without your garment also. So we need to take off that garb at times, in times, so that we are not exposed to others also, but we get our relief as well. आप 24/7 तकवा के लिबास में नहीं रह सकते हैं. ठीक है जी. और उसकी आयत भी अल्लाह ने सूरह नूर में बताई हुई है. तो वो एंजल बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए. इंसान रहिए, और इंसान इमोशंस के साथ है, और अपने लिए भी ज़रा टॉलरेंस डेवलप कीजिए. इफ़ यू एक्सीड, इफ़ यू गो ऑफ ट्रैक, इफ़ यू गो ऑफ बोर्ड, इट्स ओके. ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, वी विल मेक मिस्टेक्स, बट सालिहीन रहिए. एटीट्यूड आपका यही. इस तरह तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगी लाइफ. Keep correcting yourself to the best of your ability. Keep correcting yourself to the best of your ability, and that's the way forward. It's a way of life.
It's not that you're going to reach somewhere that things will finish. No, you continue this path, and that's the best. That's all required. Yeah, I And think life can be it's so quite easy clear, like that, you know. perfectly. ठीक है, Very thank clear, you. माशाल्लाह. जी तो I think it's a good Yeah. idea, अमीना, कि next time, next Sunday को इसी को आप तकवा की लिबास की जो बात की है ना, जी जी इसी जी को थोड़ा थोड़ा सा सा मैं और कर elaborate लेंगे करूँ. बिल्कुल ठीक है. ताकि फिर वो ओवरऑल कवर अप हो जाएगा उसका. ठीक डेफिनेटली है ना, आंटी, पूरे डेफिनेटली. टॉपिक का फिर. एंड दैट्स बिल्कुल बी ठीक है. नाइस. थैंक यू सो मच फॉर आउटस्टैंडिंग ठीक है. लेक्चर, माशाल्लाह, बहुत थैंक यू सो अच्छा. मच. बहुत थैंक यू. शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी. Amna, can you explain just two words? You know, they're also related to this qital. It's जी Harun and Saf. Saf का क्या मतलब होगा? And Harun is which psyche of ours? जी सफ़ इज़ एक्चुअली जब आप सफ़ों में खड़े होते हैं ना, इन रैंक्स. सो वो जो हमने आयत पढ़ी है उसमें सफ़ का मतलब ये है कि आप एक अपने सामने एक फ्रंट लाइन बना देते हैं. सो व्हेन यू आर फाइटिंग, तो फ्रंट लाइनर्स जिस तरह आ जाते हैं ना, जिस तरह आज भी आजकल वी आर यूजिंग दिस टर्म एज वेल, आवर डॉक्टर्स आर द फ्रंट लाइनर्स, दोज हु आर फाइटिंग. सो द सिमिलर वे हमारी एक साइकी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन comes in front, comes in highlight हो जाती है as a rank, but that rank has to be very strong so that there are no gaps in the rank and no loopholes, and we are, and it takes character to come up with that, to have that kind of stance in your front. So Saf means the rank of our believing psyche. एंड हारून आपने कहा है, हारून की जो आयत है, बिकॉज ही इज़ फ्लुएंट इन स्पीच. हज़रत हारून की वो हमारे अंदर जो जो हज़रत हारून की फॉलोइंग में जो साइकी जाती है, दैट हैज़ डेवलप्ड इनफ एलोक्वेंस इन अस. सो आई थिंक आई read it. It's Surah 20 है. I'm just going to open and check before I give you the ayat. I think I don't know the ayat yet. I will post it in the chat. It's either in Surah 20 or in Surah 7. So, because when Hazrat Musa requests Allah Ta'ala that, I can't speak that well, I have a knot in my speech. So, he has the speech impediment. So, he requests Allah Ta'ala for further support of Hazrat Harun, who is actually more eloquent in putting the point across. So, दोनों का जाना ज़रूरी है. ठीक है जी, तो आपके So लिए you mean हम अपनी वो वाली साइकी विल जो हमारी हारून वाली साइकी है, जो एलिक्वेंट है, जिसको अच्छी तरह बात करनी आती है, विल पुट दैट साइकी इन फ्रंट. एंड और उस वक्त हम उस जोन में या उस साइकी के साथ बात करेंगे. ऑब्वियसली देन वी विल बी मोर क्लियर. फिर हम और नॉनसेंस बात नहीं करेंगे. We will just be, straight and with correct words and wisdom and tone and all that. डेफिनेटली. बट हज़रत मूसा की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज फाइट उन्होंने करना है, बिकॉज हज़रत मूसा हैज़ बीन ग्रोइंग अप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फेरो. सो फाइटिंग उनकी तरफ से आ रही है. No, that is fine. वो strength आपको मूसा वो से स्ट्रेंथ मिलेगी है. to stand in front of to stand in front of Pharaoh. But जब आप पुटिंग फेरो द के पॉइंट सामने अक्रॉस. खड़े तो हो गए हैं. अब आपने किस तरह से फेरो से फाइट करनी है. अब उसमें ऑब्वियसली आप अपनी वो वाली साइकी लेके आएंगे जो ज्यादा विजडम के साथ है, जिसको टोन भी जिसकी ठीक है और जिसको जो वर्ड्स भी सही चूज कर रहे हैं. अगर वो वाली साइकी हम सामने नहीं लाएंगे, विच इज हारून साइकी, तो फिर भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा. खड़ा होना फेरो के सामने इज नॉट इम्पोर्टेंट. आप बोल क्या रहे हैं और किस टोन में बोल रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. मे बी दैट्स व्हाई हारून वाज देयर विद मूसा, कि दोनों चीजें चाहिए हैं हमें. But So दोनों that was the चाहिए. thing. ठीक They है. are both equally important. Not to diminish the Yes. the significance of either. They are both equally important, and they have to go together. ठीक है जी. एक आपका belief और एक आपका बयान करने का तरीका. So दोनों को साथ होना ज़रूरी है. ठीक है जी. ठीक है. Thank you so much. And दोनों का together. Balance. Yes.
like a Man teamwork. is comfort. Sorry, जी yeah. जी Man ठीक है. is comfort, and Salwa, you said, Salwa, I forgot actually. Man is comfort? Man is ehsan and salwa is comfort. Oh, okay. All right. That's from the Thank you. other Thank class. you. ठीक है. चलें. Thank you so Yeah. much जी. Inshallah Thank we'll you. just